Hi guys, let's do the assignment numericals of labor supply. So like I said in my last video, labor supply is all about figuring out the budget line. अगर आपको budget line एक बार निकालनी आ जाती है labor supply की या for that matter overtime की or any other application that we do in labor supply, तो then you're sorted because then you know कि आपके पास एक इंडिफरेंस कर्व है, आपके पास एक बजट लाइन है, आपको मैक्सिमाइज करना है, तो उसके अंदर उसके बाद कोई ट्रिक नहीं बचती है. द ओनली ट्रिक इज फॉर यू टू फिगर आउट द बजट लाइन. क्वेश्चंस करते हैं. वी गिवन u is equal to c into n, so I will write u is equal to r into c. You know the two reasons. One, L जो है वो लेबर सप्लाई से कंफ्यूज हो सकता है, एग्जामिनर के लिए भी कंफ्यूजन हो सकता है. प्लीज मत यूज करिए. आप हमेशा लिखिए अपने एग्जाम के उसके अंदर और अपनी उसके अंदर कि लेजर इज सेम एज रिलैक्सेशन एंड दैट्स व्हाई यू चेंज द कर्व. जस्ट राइट इट ताकि पता लग जाए. नॉन लेबर इनकम इज 50. करंट लेबर आवर्स वर्क अवेलेबल इज 50. W is 5. So my budget line क्या है? 5R plus C. The cost of relaxation is 5. C की cost is 1. Always assume this 1 is equal to 15 to 5 is 250 plus 50 which is 300. So ये मेरी budget line है. I can calculate. So C by R is equal to 5 which implies C is 5R which means R is equal to 300 upon 10 which means R is 30. So if R is 30 then labor supply is 20 hours. And consumption is 5R, right? So R is 30, so that means consumption is 150. You know, side note, just to make it interesting, आप इस consumption को cross check कर सकते हो. कैसे करोगे? मैंने कितने घंटे काम किया? 20 hours. एक घंटे का मुझे 5 मिलता है तो 20 hours का कितना मिला होगा? 20 into 5, 100. और मेरे पास नॉन लेबर इनकम थी 50, तो मेरे पास टोटल इनकम कितनी हो गई? 150. Right? Now, overall the wage rate increases to 10. Then what happens? When overall the wage rate increases to 10, now my new budget line becomes 10R plus C is equal to 50 into 10 is 500 plus 50 which is 550. Then C becomes equal to 10R which implies that R is equal to 55 by 27.5 hours. So जब मेरा वेज रेट जो है वो इंक्रीज कर गया तो मेरा रिलैक्सेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया. 30 आवर्स से कितना हो गया? 27.5 आवर्स. 27.5 आवर्स का मतलब है माय लेबर सप्लाई हैज इंक्रीज टू 22.5 आवर्स एंड माय कंजम्पशन नाउ इज हाउ मच? कंजम्पशन विल बी वे हायर क्योंकि सेम घंटे काम करके आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ना. सो इट्स 10 आवर विच मीन्स माई कंजम्पशन इज 275. My consumption is 275. Let's do overtime. So overtime के लिए हमें क्या पता है? हमें पता है ये हमारी budget line है, ये मेरा E0 है. This is my overtime line. So overtime line के लिए मेरे वो क्या है? My this thing is 10,1 my price ratio and my E0 bundle is given to me already. E0 is what? E0 is 30,150. E0 is 30,150. So which means that my budget line is 10R plus C is equal to 30 into 10 is 300 plus 150 which is 450. So now I do U is equal to R into C subject to 10R plus C is equal to 450. So C is equal to 10R. So R is 450 upon 20 which is 22.5 hours. My relaxation is how much? 22.5 hours. My labor supply automatically becomes 27.5 hours and my consumption is 225. यहाँ पे consumption से कम क्यों है? So overall welfare increase obviously यहाँ पे ज़्यादा है ना, जैसे हमने थ्योरी में बोला था, क्योंकि consumption यहाँ पे is way higher as compared to this one. यहाँ पे मुझे हर एक घंटे के $10 मिल रहे हैं. यहाँ पे मुझे 20 घंटे के बाद जो मैं काम कर रही हूँ उस पर $10 मिल रहे हैं. So herein I am working for 27.5 hours. पहले 20 hours के लिए मुझे कितना मिला होगा? 5 rupees per hour. उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा 7.5 घंटे काम किए उसके लिए मुझे 10 rupees per hour मिला ना, और यहाँ पे मुझे हर एक घंटे के लिए एक्स्ट्रा मिला. Right? So that is the difference that we have. All right? Simple enough. Let's do the next question. So the current W is 5 rupees per hour. Total hours are 80.
हमारे को given a non-labor income is 100, the government introduces a new way of taxation. For the first 100 rupees of the labor income, there is no tax, and after that, there's a tax of 50%. We are given the function, it's not written here. Let me just write here. It is R into C. So हमारे पास U is equal to R into C है. The wage rate is 5R plus C is equal to 80 into 5 is 400 plus 100 is 500. This is my initial budget line. In the initial budget line, what is my consumption? C upon R is equal to 5, which implies that C is equal to 5R. So R is 500 upon 10, which is 50 hours, which means my consumption is 250. This is my E0. Now, the new scheme of taxation. First 100 rupees of labor income, there is no tax. After that, there is a 50% tax on labor income. On labor income. मतलब ये जो नॉन लेबर इनकम है ना 100 की, इसके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं. और उसके बाद भी जो लेबर इनकम है उसमें पहले 100 रुपीज पे कोई टैक्स नहीं है. सो इफ आई वाज टू मेक दिस डायग्राम, मेरे पास इनिशियल बजट लाइन थी ऐसी. दिस वाज माय एंडाउमेंट. दिस इज 100. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? द गवर्नमेंट सेज कि आप पहले 100 रुपीज जो अर्न करेंगे लेबर इनकम के, दिस बिकम्स 200 देन, तब तक कोई टैक्स नहीं है. उसके बाद आपकी वेज रेट सडनली फॉल कर जाएगी. सो माय budget line is this and this. It's a king's budget line. There's a black line to it like this and there's a red line to it which is right here. So the thing is कि red line का तो इक्वेशन मैंने निकाल ही लिया है. रेड लाइन के ऊपर तो मैंने ई नॉट भी निकाल लिया है. सो इफ आई एम ऑन द रेड लाइन, देन दिस इज व्हाट इट इज. नाउ आई हैव टू फिगर आउट माय ब्लैक लाइन. नाउ आई हैव टू फिगर आउट माय ब्लैक लाइन इक्वेशन. और ब्लैक लाइन इक्वेशन के बाद मुझे इसको सॉल्व भी तो करना है, राइट? सो व्हाट इज माय ब्लैक लाइन इक्वेशन गोइंग टू बी लाइक? दिस अ 50% टैक्स. 50% टैक्स का मतलब है कि जो W है ऑन द ब्लैक लाइन, दैट इज 2.5. The W on the black line is 2.5. Also, I know that the point it passes through, वो यहाँ पे तो 200 है और यहाँ पे क्या है? क्या हम निकाल सकते हैं इस पॉइंट को? You understand? यहाँ पे तो वो 200 है. 200 क्यों है? क्योंकि वो बोल रहा है ना पहले 100 रुपीज ऑफ लेबर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. तो 100 में ही नॉन लेबर इनकम है, 100 रुपीज में ही लेबर इनकम होगी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. उसके बाद मेरा टैक्स आएगा ना, उसके बाद स्विंडलिंग शुरू हुई. तो ये पॉइंट तो 200 आ गया. व्हाट इज दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस? कैन वी फिगर दैट आउट? Yes, we can figure that out because वो वाला पॉइंट हमारा रेड लाइन पे भी है. तो रेड लाइन की बजट लाइन मेरे पास ये है ना. अब इसके अंदर क्या हुआ? इफ आई पुट C to be equal to 200, then can I figure out R here? I can. Yes. So 5R is equal to 500 minus 200, which is 300, which means R at this point is 60. So this point is 60. तो मेरे पास ये 60 है, ये 200 है, मेरे पास W है ब्लैक लाइन का. क्या मैं फिगर आउट कर सकती हूँ अपनी ब्लैक लाइन की इक्वेशन? When I know the point it passes through. Yes, I can. The point it passes through is 60, 200. So I know it's going to be 2.5 R plus C is equal to 2.5 into 60, which is 150. 2.5 into 60, which is 150, plus 200, which is 350. So my black line equation is 2.5 R plus C is equal to 350. ठीक है. So C is equal to 2.5 R. So R is equal to 350 upon 5, which is 70. R is 70 here, and C then consequently will be 2.5 into 70, which is 175. ठीक है. अब now I'll take it slow now. The thing is, हमारे पास जो बजट लाइन है ना, वो ये है ग्रीन वाली. तो हमारे को ये नहीं पता कि एक्चुअली हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे कि हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे. हमने ये बोला कि ब्लैक लाइन पे अगर हम कंज्यूम करते हैं तो मेरा ये पॉइंट होता है 70, 175, which means 70 is somewhere on the right of 60, which is somewhere here. और अगर मैं रेड लाइन पे कंज्यूम करती हूँ, then I'm here 50, 250, which means I'm somewhere here 50, 250. But my budget line is this way. My budget line is this way. My budget line is swindling at 200.
My budget line is swindling at 200. अगर मैं देखूँ तो मेरी बजट लाइन तो ये ग्रीन वाली है ना, विद आउटवर्ड किंक. सो आई एम सेइंग अगर मैं ब्लैक लाइन पे कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं पे कंज्यूम कर रही हूँ. माय पॉइंट इज समवेयर हियर, बट दिस पॉइंट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी. ये तो बजट लाइन पे ही नहीं है, तो दिस पॉइंट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी. और अगर मैं रेड लाइन पे कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे कंज्यूम कर रही हूँ, विच इज सम पॉइंट लाइक दिस राइट हियर. बट दिस पॉइंट ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, क्योंकि ये जो रेड लाइन के ऊपर पॉइंट है ये तो मेरी बजट लाइन का पार्ट ही नहीं है, बिकॉज माई बजट लाइन इज दिस ग्रीन थिंग, right? So what is happening? What is happening is that whatever points of equilibrium I'm getting are not valid. So ये वाला point भी valid नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला point भी exist नहीं करता, और ये वाला point भी valid नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला point भी exist नहीं करता. Which means कि अगर हम IC draw करें तो वो कहाँ पे होगा? वो outward kink पे होगा. Outward kink का मतलब है he will consume at the point which is 60,200, जिसमें वो 60 hours का relaxation लेगा और वो 200 का consumption लेगा. अब इसके अंदर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन स्मॉल थिंग एज अ साइड नोट. हम एक साइड नोट बनाते हैं. साइड नोट पे आई वॉन्ट टू से दैट अगर हाइपोथेटिकली ये फंक्शन ऐसा होता कि ये वाला जो पॉइंट है वो आता 50 कॉमा समथिंग, I don't care what something is, but point was 50 comma something, then that point would lie on this green line somewhere here. Then that point would lie somewhere here on this green line. Then this point would have taken. Then हम बोलते कि ये वाला point valid नहीं है क्योंकि ये वाला point जो आ रहा है वो red line पे आ रहा है, और red line तो मेरी budget line ही नहीं है इसके अंदर जब मैंने नया वाला taxation system लगाया, तो इसलिए ये वाला point valid नहीं है, but ये वाला point valid है because it's coming on the green line. Then we would have picked this point. हमारे केस के अंदर दिक्कत क्या है? हमारे केस के अंदर ना ये वाला point valid है और ना ही ये वाला point valid है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि वो कहाँ पे कंज्यूम करेगा? ओनली ऑन द आउटवर्ड किंक, ओनली ऑन द आउटवर्ड किंक. सो यहाँ पे हम लोगों की तीन चीजें समझना जरूरी है. फर्स्ट कि हमने बजट लाइन कैसे बनाई अपनी ओरिजिनल लाइन की, विच वॉज द रेड लाइन. उसके बाद हमने बजट लाइन कैसे बनाई, सेकेंड इज बजट लाइन कैसे बनाई ब्लैक लाइन की. ठीक है. थर्ड थिंग इज हमने कैसे दोनों पॉइंट्स निकाले, वो सिंपल है. और फिर हमने देखना, ये समझना जरूरी है कि उन पॉइंट्स में से वैलिड पॉइंट कौन सा है. These are the four things that we have to do. Please revise the एक बार वीडियो रिवाइंड करके ये ब्लैक लाइन की जो हमने कैलकुलेशन करी है वो दोबारा देखना, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे पास पहला ये पॉइंट 60,200 आया कैसे, और फिर हमने उस पॉइंट को यूज करके ये वाली बजट लाइन निकाली कैसे. Let's do the second part. Current wage is 5 rupees per hour. Again, U we know is R into C. Total number of hours is 80. अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा उसको 100 रुपीज मिलेंगे. मतलब हमारी पहले बजट लाइन है कि अगर वो काम नहीं कर रहा, इफ ही इज एट 0, तो उसको 100 रुपीज मिलेंगे. जब वो काम करना शुरू कर देता है तो उसको ये 100 नहीं मिलता, तो उसकी बजट लाइन यहाँ से शुरू होती है. सो दिस 100 इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू आर नॉट वर्किंग. दिस 100 इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू आर नॉट वर्किंग. सो यू हैव दिस वर्टिकल लाइन एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट दिस बजट लाइन इज लाइक दिस. सो बजट लाइन मेरी यहाँ से तो शुरू होगी ही नहीं. सो एक्चुअली स्पीकिंग, you know, when he starts working he has no non-labor income. When he starts working he has no non-labor income, and when he is not working then he is only getting non-labor income. तो उसके पास एक एंडाउमेंट है 80,100 की. एक एंडाउमेंट है 80,100 की. ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट 1. ये है पॉइंट 1. इसके अलावा जो बाकी बजट लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस से शुरू होगी, क्योंकि जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, जैसे ही मैं थोड़ा सा भी इधर मूव करी, वैसे ही क्या हुआ, उसको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस नहीं मिले. ओके. एंड व्हेन ही वर्क्स he doesn't get 100 rupees, and all wages are subject to 50% tax, which means my actually adjusted wage rate is 2.5. So my budget line is 2.5 R plus C is equal to 80 into 2.5, which is 200, right? So this is my budget line. U is equal to RC को हमें वो करना है. So then C is equal to 2.5 R, which means R is 200 upon 5, which is 40, and C at that point is 2.5 into R, which is 100. So मेरे पास पॉइंट आया 40,100 का. तो अगर मैं इस बजट लाइन पे कंज्यूम करती हूँ तो मैं कहाँ पे कंज्यूम करूँगी? 40,100 पे. अब मुझे ये समझना है कि मैं ड्रॉ ऐसे किया है, बट हो सकता है ये वाला जो पॉइंट है 80,100 का वो यहाँ पे हो, तो बोले मैं तो इस पॉइंट पे कंज्यूम करूँगा, या फिर वो यहाँ पे हो तो वो बोले मैं इस पॉइंट पे कंज्यूम करूँगा. सो आई डोंट नो वेदर यूटिलिटी ऑफ दिस पॉइंट इज मोर और दिस पॉइंट इज मोर.
ये दोनों पॉइंट्स उसके लिए अफोर्डेबल है ना. ये वाला पॉइंट तुम बजट लाइन में डाल ही नहीं सकते क्योंकि इट्स लाइक अ it's like a one vertical point standing in the middle. So my affordability actually is this one point and this budget line. तो अब मुझे क्या करना है? What do I have to do? I will figure out the utility. तो मैंने बोला utility at this point is 80 into 100 क्योंकि R into C है ना, which is 8000, and utility at this point is 40 into 100 which is 4000. Now you know 8000 is more than 4000, which means actually ये जो मेरा point है वो यहाँ पे कहीं पे lie कर रहा है, and if I draw the IC there, then that is a higher IC. So in this case will he work? He will not work at all. वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मुझे 80 hours of relaxation दे दो और 100 रुपीज दे दो unemployment benefit के. I am happy. I don't want to work even a single day. क्योंकि अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे पास जो कंजम्पशन बंडल आता है वो है 4000, और अगर मैं काम नहीं करता तो मेरे पास जो कंजम्पशन बंडल आता है उससे मेरी यूटिलिटी कितनी है? 8000. लेट मी रिआइटरेट वन टू थिंग्स हियर. इस केस में हमारे पास जो बजट लाइन है वो एक तो ये है और एक हमारा ये पॉइंट है. अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लूजली डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि ये आईसी हायर है कि ये आईसी हायर है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कि ये पॉइंट यहाँ पे. सो दैट इज वाई व्हाट वी डू इज हम आइसोलेशन में ये आईसी और बजट लाइन को निकाल लेते हैं और हम ये फिगर आउट कर लेते हैं पॉइंट ई नॉट कौन सा है. उसके बाद हम यूटिलिटी एट ई नॉट एंड यूटिलिटी एट दिस पॉइंट कंपेयर कर लेते हैं. जहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे वो कंज्यूम करेगा. नेक्स्ट केस, अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम में अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे. जब वो काम करता है तो उसको 100 नहीं मिलते. Subject all the wages are subject to 50% tax except जो first 20 hours हैं they are exempted. अब क्या हुआ, मेरे पास एक पॉइंट तो वो है ही है, ठीक है. अब ये है कि हमारे जो फर्स्ट 20 आवर्स हैं उस पे हमारे को एक हायर वेज रेट मिल रहा है, उसके बाद हमें एक लोअर वेज रेट मिल रहा है, ठीक है. सो आई हैव माई बजट लाइन इज दिस वन पॉइंट, दिस लाइन एंड दिस लाइन. So I have to calculate the black line equation, the red line equation and the point we already know. So ये वाला जो point है, let's call this point 1. Point 1 we already know is 80, 100 है ना. 1 का तो हमें पता ही है. अब हम निकालते हैं black line की equation, हमें निकालनी है और हमारे को निकालनी है red line की equation. सबसे पहले red line की equation से शुरू करते हैं. Red line की equation में क्या है, we have 5, ये obviously red line ऐसे extend होती ना अगर होती तो. So we have 5 which means कि अगर कभी टैक्स लगता ही नहीं तो हमारे पास क्या होता, अगर फर्स्ट 20 आवर्स में हमारे पास टैक्स नहीं है दैट मीन्स आई एम अर्निंग एट द रेट ऑफ 5. If I continue this line it would end somewhere. So I'm finding out the equation of this line. The equation of this line is 5r plus c is equal to 80 into 5 is 400. ठीक है. जैसे उसने काम करना शुरू किया उसको नॉन लेबर इनकम मिली नहीं तो बात ही खत्म हो गई. ये मेरी होगी रेड लाइन की इक्वेशन. सबसे पहले रेड लाइन को ही सॉल्व कर लेते हैं. सो c इज इक्वल टू 5r, c by r इज इक्वल टू 5 है ना. सो दैट मीन्स r इज 400 अपॉन 10 विच इज 40 एंड c इज 40 इंटू 5 विच इज 200. तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया 40, 200 का, ठीक है. अब हम निकालते हैं अपनी ब्लैक लाइन की इक्वेशन. अब ब्लैक लाइन की इक्वेशन जो है उसको निकालने के लिए मेरे पास ये वाला पॉइंट आना जरूरी है ना. अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट नहीं है तो मैं क्या करूंगी. सी मुझे ब्लैक लाइन का स्लोप पता है, ब्लैक लाइन का स्लोप इज 2.5, बट मेरे पास ये पॉइंट होना जरूरी है. हाउ डू आई फिगर आउट दिस पॉइंट. यू रिमेंबर हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी फिगर आउट किया था. वी फिगर आउट दिस पॉइंट हियर. लेट्स फिगर आउट दिस पॉइंट हियर. वो फर्स्ट 20 आवर्स आर एग्जेम्प्ट व्हिच मींस दैट हमने 80 पे शुरू किया. फर्स्ट 20 आवर्स आर एग्जेम्प्ट मतलब जब तक आप पहले 20 घंटे काम करोगे, मतलब आप रिलैक्स करोगे 60 आवर्स का, वो एग्जेम्प्ट है. अगर मेरे पास ये 60 आ गया और ये वाला जो पॉइंट है वो रेड लाइन पे भी एग्जिस्ट करता है तो मुझे पता है ये 60 है. इफ आई पुट दिस टू बी 60 देन कैन आई फाइंड आउट c which is the point on the y axis. Yes I can. 60 into 5 is 300 which means c is 100. So the point here, this point 2 is what? Point 2 is 60, 100. अगर मेरे पास point 2 60, 100 आ गया, अब मैं अपना बजट लाइन निकाल सकती हूँ. बजट लाइन विल बी 2.5 r plus c. 2.5 r
plus C is equal to 2.5 into 60, 150 plus 100, 250. ये मेरी ब्लैक लाइन की इक्वेशन आ गई. अब मैं क्या करूंगी, मैक्सिमाइज करूंगी. So R is equal to 2.5, C is equal to 2.5 R, so R is equal to 250 upon 5, which is 50, and then C automatically is equal to 50 into 2.5, which is 125. So मेरे पास ये 3 points हैं. So I have a point which is 50, 125. I have a point 40, 200. I have a point 80, 100. And I have a point of kink also. I have the point 2, which is the point of kink, which is 60, 100. अब मुझे नहीं पता कि मैं where am I going to be. So let's check. हमारा ये वाला point valid है कि नहीं है. 50, 125. 50, 125 मतलब it's somewhere here. क्योंकि ये 60 है तो 50, 125 यहाँ पे होगा. मतलब ये पॉइंट वैलिड हो सकता है ना, ये पॉइंट वैलिड है क्योंकि ब्लैक लाइन मेरी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. माय बजट लाइन इज दिस एंड दिस. अगर मेरा ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये 60 से कम है, पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला मेरा पॉइंट वैलिड है. जस्ट टू मेक श्योर दैट वी नो दिस पॉइंट इज वैलिड, लेट्स चेक दिस पॉइंट. रेड लाइन जो है वो मेरी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे फॉर द फर्स्ट 20 आवर्स ऑफ वर्क. Red line पे I want to work for 40 hours, I want to relax for 40 hours. That means this point is also somewhere here. But इस point पे ये जो red line है वो यहाँ पे आ रही, ऐसे आ रही थी ना. This is the red line. So this is the red line. इस red line पे ये वाला point अगर हम plot करें तो वो यहाँ पे होगा कहीं पे. But red line का ये वाला portion जो है, इसके बाद वाला portion तो हमारे लिए valid ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो red line का portion valid है वो तो सिर्फ ये वाला है ना. ये वाला portion तो valid ही नहीं है. Which means what? Which means that this point is not valid. So where is the consumption point? The consumption point is this. When we get this to be consumption point, mind you, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे ICs ऐसे हैं. If my IC is like this, then kink is also not valid, and ये वाला point तो हम वैसे ही बोल चुके हैं valid नहीं है. So now that my ICs are like this, then the comparison can only be between this point and this point, which is that point hanging in the air, है ना. क्योंकि अगर मैं IC ऐसे है और ये वाला जो हैंगिंग इन दी एयर है वो यहाँ पे, तब भी वो हायर हो सकता है, वो यहाँ पे तब वो लोअर होगा. तो ये वाला पॉइंट जो हैंगिंग इन दी एयर है उसका यूटिलिटी इज 8000. ये वाला जो पॉइंट है जो वो कंज्यूम करेगा आफ्टर टैक्सेस एंड व्हाटएवर, दैट्स गोइंग टू बी 50 into 125, व्हिच इज 6250. 6250. तो मतलब वो काम करेगा? वो अभी भी काम नहीं करेगा. वो बोलेगा वो जो पॉइंट है ना हैंगिंग इन दी एयर, जहाँ पे मुझे 100 रुपये मिलते हैं काम ना करने के, तो वो मैं वो वाला पॉइंट लूंगा. एटलीस्ट मैं 80 आवर्स रिलैक्स तो कर सकता हूँ, राइट. सो ही विल अगेन नॉट वर्क. सो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले अपनी बजट लाइन देखी, उसके बाद हमने देखा कि हमारे ब्लैक लाइन और रेड लाइन की इक्वेशंस क्या हैं, फिर हमने देखा वैलिडिटी ऑफ अ पॉइंट कि जहाँ पे हमारी जो बजट लाइन है किंक्ड, वो उस पोर्शन में हमारा कौन सा पॉइंट फिट बैठ रहा है. रेड वाला नहीं बैठा, ब्लैक वाला बैठा. उसके साथ हमने यूटिलिटी कंपेयर की अपनी हैंगिंग इन दी एयर वाले पॉइंट की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. सॉरी. वेज रेट इज 5 per hour, total hours is 80, U is equal to R into C is my function. All wages are taxed at 50%, but to incentivize the workers to work more, overtime wages are paid at 100 rupees per hour for all hours worked beyond 20 hours. It's a simpler question. तो मेरे पास, this is 10 rupees per hour. Sorry. So initial wages 2.5. 5 लेने की जरूरत ही नहीं है ना, 50% है. The new overtime wages 5. हमारे पास क्या है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है ना कुछ है, हम यहाँ पे हैं. ठीक है, 20 आवर्स जो है ना, उसके बाद हमारे पास एक और बजट लाइन है. तो हमें क्या करना है, हमें फिगर आउट करना है कि वो यहाँ पे कंज्यूम करेगा कि वो यहाँ पे कंज्यूम करेगा. लेट्स कैलकुलेट, है ना. सो आई विल अगेन डू ब्लैक लाइन and red line. So I will again do black line and red line. So this is my black line equation and that's my red line. So पहले मैं निकालती हूँ red line. So my red line equation is what? Red line is 2.5 R plus C is equal to 80 into 2.5 which is 200. The black line equation is, उसके लिए हमें पता है ये पॉइंट जो है वो क्या है, वो 20 आवर्स का वर्क है ना, तो 80 minus 20 is 60, है ना गाइज. ये रिलैक्सेशन है,
वो आप ऐसे रिलैक्सेशन कैलकुलेट करोगे तो ऐसे लेबर सप्लाई करोगे ना। 80 घंटे आपके पास टोटल है, 80 घंटे में से जब आपने 20 घंटे काम कर लिया तो रिलैक्सेशन के लिए 60 आवर्स बचे, तो ये पॉइंट 60 है। और ये वाला पॉइंट क्या है, रेड लाइन ब्लैक लाइन मर्ज हो रही है, तो यहाँ पे 60 डालेंगे। लेट्स पुट 60 हियर। इफ आई पुट 60 हियर देन व्हाट डू आई गेट, C टू बी इक्वल टू 60 into 2.5 is, so that means C is 50. So this point right here is 60 comma 50. तो अब इसको हम निकाल सकते हैं। ओवरटाइम वेजेस आर हाउ मच, 5. सो 5R प्लस C, मैंने दोनों को आधा आधा क्यों कर दिया, आई होप यू गाइस आर क्लियर, बिकॉज वेजेस आर टैक्स्ड एट 50%। सारी वेजेस आर टैक्स्ड एट 50%, चाहे ओवरटाइम हो चाहे नॉर्मल वेजेस, सारी वेजेस आर टैक्स्ड एट 50%, taxed at 50%. So 5R plus C is equal to 5 into 60, 300 plus 50 which is 350. So अब मुझे इसका पॉइंट निकालना है, इसका पॉइंट निकालना है, देखना है कि दोनों में से वैलिड कौन सा है। यहाँ पे हम वैलिडिटी क्यों चेक करेंगे, पहले तो हमने कभी ओवर टाइम वैलिडिटी नहीं चेक करी। पहले हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें पता है कि वो जो पॉइंट स्विंडल हो रहा है ना वो ई नॉट से हो रहा है, तो हम ऑलरेडी इस पे निकाल लेते थे कि वो ई नॉट ही है पॉइंट। इस लाइन पे हम पहले ही निकाले थे कि जिस पॉइंट पे हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ई नॉट है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम लोग जो कर रहे हैं, हम बोले 20 आवर्स के बियॉन्ड है, तो हो सकता है मेरा ई नॉट कहीं यहाँ पे हो। सो वी डोंट नो कि विच पॉइंट वुड बी वैलिड। हमारी बजट लाइन क्या है, आवर बजट लाइन इज दिस पोर्शन ऑफ द ब्लैक लाइन एंड दिस पोर्शन ऑफ द रेड लाइन। वी हैव एन इनवर्ट किंग, this portion of the black line, this portion of the red line, so we have an invert kink. So red line first. So U is equal to R into C. C by R is equal to 2.5, which means C is equal to 2.5 R. So R is equal to 200 upon 5, which is 40. So मेरा point क्या आ गया, 40, 100. यहाँ पे C by R is equal to 5. So R is equal to 70, no, 35. And then consumption is, C is 35 into 5, 175. 175. So my this point is 35, 175. अब देखिए वैलिड कौन सा है, हमारे पास ये बजट लाइन है ग्रीन वाली, 60 यहाँ पे है, 40, 100 इज ऑन द रेड लाइन, मतलब समवेयर हियर। ये पॉइंट तो बजट लाइन पे है ही नहीं, वैलिड ही नहीं है। 35, 175 is somewhere here on the black line. ये point valid है, इसका मतलब I'm going to be consuming at this point, which means I will be working overtime. मैं 20 घंटे रेगुलर पे लेके 15 घंटे का ओवरटाइम लूंगी, राइट? कैसे किया? I hope validation is clear to you, हाँ guys, कैसे हम points को valid देखते हैं, alright? तभी मैं ये वाले क्वेश्चंस बार बार कर रही हूँ ताकि आपको अगर एक में ना समझ में आए तो दूसरे में आ जाए, दूसरे में ना आए तो तीसरे में आ जाए। दैट्स द रीजन आई हैव डन सिमिलर टाइप ऑफ 4 क्वेश्चंस। ये जो हमने 4 क्वेश्चंस अभी करे सारे सिमिलर टाइप के थे, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी सिमिलर है। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देयर इज अ स्मॉल एरर हियर, दिस इज माइनस, जो आपके असाइनमेंट्स में ठीक है, एंड द नॉन लेबर इनकम इज 20। द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी फिगर आउट द बजट लाइन। व्हाट इज द बजट लाइन गोइंग टू बी? 10R plus C, पहले ऊपर वाला का करते हैं फिर पास करेंगे, is equal to 180. Now utility function is C minus 12 minus R the whole square subject to C plus 10R is equal to 180. You see what I did? C अगर यहाँ पे पहले तो यहाँ पे भी पहले। I didn't want to change this function because you know I know that minus sign से ना आप लोग confuse हो जाओगे. That's why I want to keep it like this. So now MRS is 1 upon minus 2 into 12 minus R minus 1. This minus and minus gets cancelled. So I have MRS as 1 upon 24 minus 2R. So 1 upon 24 minus 2R is equal to 1 upon 10. So 24 minus 2R is equal to 10. So R is 14 upon 2, which is 7. This is a quasi-linear function, guys. अगर पहले नहीं भी रियलाइज हुआ आप लोग को तो ये वाला जब जैसे ही आपका आया तब हो जाना चाहिए था। सो दिस इज अ क्वाज़ी लीनियर फंक्शन, सो R is 7, which means that R will be 7 here, R will be 7 here, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है, अच्छा नो R will not be 7 here or here, बिकॉज ये हमारा ये वाला भी चेंज हो जाएगा, सॉरी नेवर माइंड। सो R is equal to 7
When R is equal to 7, my consumption is how much? I can put 7 here. 10 into 7 is 70. Consumption is 110. So my original point is 7, 110. Find out what happens when wage rate falls to 5. When wage rate falls to 5, then I get 24 minus 2R to be equal to 5. So that is 19 upon 2 is equal to R. So R comes out to be 9.5 hours, and then C comes out to be 85. So this is the point here. The point here is 9.5 comma 85. Let's do the third part. Income tax is 20%, which has to be paid on all income. All right. If the 20% here, the 20% of 20 is 4 rupees. That means this becomes 16, and the wage rate becomes 8. So my budget line becomes 8R plus C is equal to 8R plus C is equal to 8 into 16 plus 16. 16 into 8 is 144. 16 into 8, sorry, is 128. 128 plus 16 is 144. So this is my new equation. Again, let's solve it. So I have C plus 8R to be equal to 144. So 24, ये जो हमने यहाँ पे करा था ना, minus 2R is equal to 8. So R is equal to 8 and then C automatically is 80. This point is 8 comma 80. This was a simple question, right? जो आपके वैलिडेशन वाले पॉइंट्स हैं ना और डिफरेंट किंग बजट लाइंस वाले पॉइंट्स हैं, वो हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इंटरटेम्पोरल, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. सो प्लीज जस्ट फोकस ऑन इट वन मोर टाइम एंड सी दैट यू आर सॉल्विंग इट वेल, and so that there is no confusion left, so that you know in the exams you're able to perform really well. वैसे तो वो hard questions में आता है, but you know these kind of things uncertainty में भी आएंगी आगे, बहुत जगह पे आती है. So it's better that you know how the kinks are solved, how the kinked budget lines are solved here only. I know it was a drastic difference between what you've done so far in this one, but now with each chapter you will feel that the course toughness is increasing by leaps and bounds, and that's why it's very important to have strong basics, ताकि आपको ये functions देख के ही समझ में आ जाए quasi linear है, convex होगा या जो भी है. अदरवाइज आप सोचो इसको तो प्लॉट करने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा, है ना, फिगर आउट करने में कि ये कौन सा फंक्शन है, वो करने में अगर टाइम लग जाएगा तो आप वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. आप कैसे करोगे, आपको ये नहीं पता लगेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है, right? So that is why it's very important to have the correct basics. But now everything is going to move really differently. So please make sure that you watch each video 3 or 4 times. Start making your own notes. Refer to the booklet that you have been sent, and then you know just keep on doing the course. Right? Thank you.